Hello students, today we will start next part of the magnetic effect of current and the magnetism. In last video we have done magnetic force, magnetic field, and how can we find out the direction of the magnetic force, and also we have done the Fleming Lefton rule. And today we will start charge particle in a uniform electric field. Okay? So to form the uniform electric field, we take the two plate, one carry the negative charge and the other carry the positive charge. Then the electric field lines represented from positive to negative. And also we take a charge Q, positive Q, which enter in this electric field. ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि P पॉइंट से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट स्टार्ट. अब होगा क्या आपका, दिस पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स F. ठीक है, ये आपने सब कुछ फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है. इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स F ड्यू टू द electric field and that force is given by QE. Right? E is the electric field and the F is the force. Okay, these are the vector quantities, so we can represent by this. Okay, and also we know that if this positive Q charge has the mass M, okay, then this force is equivalent to the M into A. A is the acceleration of the charge particle when it enter into the electric field. जैसे ही ये electric field में enter करेगा, it experiences a force and it accelerate with the acceleration A. So Ma equal to QE and then A equal to QE divided by M. So this is the value of acceleration. Here we can write A equal to, we have QE divided by M. Okay. Okay, then its direction is changed because it accelerated, then it travel like this parabolic path. ठीक है, और ये पैराबोलिक पाथ भी क्यों होगा ये सब हम फाइंड आउट करेंगे. व्हाई दिस चार्ज ट्रेवल विद द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगा व्हेन इट एग्जिट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही ये आपका जैसे ही आपका एग्जिट किया फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट ट्रेवल द स्ट्रेट पाथ. तो ये क्यों हुआ ऐसा, नाउ वी विल डिस्कस. फॉर दिस नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन. 11th क्लास में आपने किया हुआ है टॉपिक. देखो अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देखिए. इट कवर द एक्स अलोंग इट कवर द डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस. सपोज वी टेक दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट R. ओके, सो हियर दिस इज द distance travel along the y axis, so we consider y, and from here to here this is the x at any time t. ठीक है, ठीक है, ये आपकी बात चली हुई है at time t पर. ओके, so we take now equation of motion. We know that s equal to ut plus half at square. अब यहाँ पर along the x axis भी आपका पाथ ट्रेवल हो रहा है, y axis में भी हो रहा है. तो इसका मतलब we will find out the equation of motion along the x axis as well as the y axis. So we take the x axis, so x equal to u x t plus में 1/2 at square. ओके, ए एक्स टी स्केयर. एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा आपका. सो दिस विल बी इक्वल टू यू एक्स टी. यू एक्स को हम लोग यू कंसिडर कर लेते हैं कि इट कमिंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी यू. यहीं पर मैंने लिख दिया मास एम, यू और जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज यू. ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था. सो अलोंग द एक्स एक्सिस इट हैज द वेलोसिटी यू, सो दिस विल बी इक्वल टू यू इनटू टी. राइट, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर. दिस विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन में यू. नाउ वी टेक द वाई एक्सिस. सो अलोंग द वाई एक्सिस
यहां पर लिख लीजिए, ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सो y क्या हो जाएगा अब आपके पास, u y t 1/2 a y t का स्क्वायर। अब u y क्या था आपके पास, इनिशियली वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वो तो थी ही नहीं, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर। a कितना है आपके पास, q e डिवाइड बाय में m, यहां पर हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, सो पुट हियर वैल्यू 1/2 q e डिवाइड बाय में m. Also we can put the value of the t equal to x by u, so this will become x square divided by में u square. Okay, now we have this equation y equal to 1/2 q e divided by में m u square and x square. Now look this equation of motion, 1/2 constant charge, constant electric field, uniform constant, mass of the charged particle constant, initial velocity is also constant, so this all values are constant, so we put this another constant, consider k x square. Now k की वैल्यू क्या हमने पुट की है, k इक्वल टू 1/2 q e डिवाइड बाय m u square, right? So now we have y equal to kx square and this is the equation of parabolic, parabola, ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप, this is the equation of parabola, ठीक है। So the charged particle in the region of the electric field have a trajectory as the parabolic, ठीक है, इसीलिए जो इसका पाथ है वो कैसा है, एक पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये पैराबोलिक पाथ क्यों ट्रेवल करता है। तो देखिए, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया, ए की वैल्यू क्या ली है आपने, क्यू ई डिवाइड बाय एम, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट हैज द इक्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो इट हैज द ट्रेजेक्ट्री एज द पैराबोला इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी, इस पॉइंट पर अब हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट M, ठीक है, ये पॉइंट आपका M है। अब M पॉइंट के बाद तो आपका जो इलेक्ट्रिक रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, वो आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद भी वो मूव कर रहा है एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास जो चार्ज पार्टिकल था वो एक्सेलरेट होकर आया है, तो आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा ही था कि, ठीक है, कि एनी बॉडी, it has the inability of an body by which it cannot change its state, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, मोशन ऑफ इनर्शिया, सो ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया, आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं इसको, ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया charge particle या charge Q has a straight path after the M point, and it hit at this point, इस point को हम consider कर लेते हैं Q, and it hit at Q point on the screen, ये आपके पास क्या है, स्क्रीन, राइट। सो दिस इज द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद डेरिवेशन आपका। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।